Good morning, students. Welcome back to your e-learning classes. Students, yesterday I had explained you, summarized the chapter The Rat Trap, and I hope you all must have understood about the thing and the important aspect of the chapter The Rat Trap. And now today we are going to start with the explanation. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. So, who is this man? This man is a rat trap seller who sells the rat trap and just he makes these rat traps by himself. He made them himself at odd moments. Look at the phrase odd moments. Odd moments means in his free time. He made them himself at odd moments from the material he got by bagging in the stores or at the big farms. Here, what happened? He bags means he bags the raw material. Raw material क्या होता है कि मतलब वो वहाँ कहीं से मतलब रॉ वायर्स खरीद के लाता है और उन वायर्स को वो मोल्ड करके पतली पतली वायर्स बना के जस्ट ही मेक द रैट ट्रैप्स एंड आफ्टर दैट ही सेल्स दीज रैट ट्रैप्स. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and pity theory to keep body and soul together. So what happened? ये जो rat trap ये sale करता है मतलब from street to street. This is supposed not to be profitable business. Profitable business मतलब उसको जीने के लिए body and soul मतलब एक जीने के लिए मतलब this वर्क इज़ नॉट सफिशियंट. वो सिर्फ इस बिजनेस से ये रैट ट्रैप सेल करके अच्छे से मतलब ही कैन नॉट लिव अ गुड लाइफ. मतलब अच्छे से वो खा नहीं सकता है, अच्छे से कपड़े नहीं पहन सकता है. बस हाँ ये कि मतलब ही हैड अ हार्ड टाइम. He had to restore to both begging and pity thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags. So now students look at the physical appearance of this rat trap seller. ये जो रैट ट्रैप है इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है मतलब हाउ ही लुक्स. सो इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स. रैक्स क्या होता है मतलब जो उसने कपड़े पहन रखे हैं वो फटे पुराने कुचले कपड़े हैं. वो हिज चीक्स वर सनकन मीन्स उसके जो फेस है उसके फेस के जो गाल है वो अंदर की तरफ धसे हुए हैं. व्हाट इट शोज स्टूडेंट? It shows the miserable condition, the pathetic condition of this rat trap seller. Means मतलब कहते हैं ना भूख की वजह से उसके जो गाल है वो मतलब कसे हुए हैं अंदर की तरफ जकड़े हुए हैं. मीन्स इज नॉट हेल्दी एंड हंगर ग्लीम इन आईज. आपको याद है जो मैंने एलिमेंट्री क्लास में पढ़ाया था अ बॉय विद रेड्स आईज. तो वैसे ही कहा गया है यहाँ पे एंड हंगर ग्लीम इन हिज आईज. और उसकी आंखों को देख के लग रहा था दैट ही इज हंग्री. इवन ही इज़ नॉट गेटिंग द सफिशिएंट फूड टू ईट. और उस वो लाइफ में अपनी सर्वाइव करने के लिए उसको पैसे चाहिए और इतने पैसे वो इस रैट ट्रैप को सेल करके वो नहीं कमा पाता. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Now students underline the word vagabond. Vagabond means scamp या rascal या a worthless person who plots. Underline the word plots. Plots क्या होता है? Walking laboriously मतलब पैर घसीट घसीट के चलना. Monotonous means boring life. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. राइटर बोल रहा कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इस वेगाबॉन्ड की ये जो स्कैम्प है ये जो वर्थलेस पर्सन है उसकी लाइफ कितनी बोर और कितनी सैड हो सकती है. Who plods along the road left to his own meditations. Who plods along the road मतलब वो बस मतलब यहाँ वहाँ घूम रहा है मतलब बड़ी मुश्किल से मतलब धीरे धीरे चल रहा है बड़ी मुश्किल से अपने पैर उठा रहा है. मतलब यहाँ पे कहा गया ना हैंगर ग्लीम इन हिज आईज हिज चीक्स वर सनकन मतलब वो बड़ी ज़बरदस्ती से चल रहा है बस उसको रैट ट्रैप सेल करने हैं. लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस मीन्स अपने ही विचारों में घूम रहना. While wandering just for selling these rat traps, he lost in his own thoughts. उसके अपने ही विचार हैं. But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन इसके मन में बहुत एक विचार आया. Just a thought came to in his mind, which really seemed to him entertaining. Entertaining means which really seemed to him
अम्यूजिंग, जिसको मतलब सोच के वो बहुत खुश होता है. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. So what happened, बेटा? यहाँ पे कहा गया he had naturally been thinking of his rat traps. उसका काम था rat traps बनाना, rat traps सेल करना. लेकिन एक दिन वो अपने पूरी rat traps को बड़े ध्यान से देखते हैं. तभी then an idea came to his mind. The whole world around him. अब उसने कहा, जब इस रैट इसको देखा, केज को, केज ही है जो रैट ट्रैप, एक केज ही है, और उसके इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है वो उस वर्ल्ड को इमेजिन कर रहा है. द आइडिया द होल वर्ल्ड अराउंड हिम, द होल वर्ल्ड विद हिज लैंड्स एंड सीज, हिज सिटीज एंड विलेजेस. अब ये कौन से वर्ल्ड की बात कर रहा है? ये उस वर्ल्ड की बात कर रहा है, द वर्ल्ड जहाँ, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ जो फ्लरिश्ड है, जहाँ पे हैप्पीनेस है. द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. उन्होंने कहा ये जो लाइफ है, ये जो यहाँ पे बता रखे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में लैंड्स हैं, सीज, सिटीज़ हैं, का ये कुछ नहीं है. वो कह रहा है अपने अकॉर्डिंग कि बट अ बिग रैट ट्रैप का सिर्फ ये चीज़ क्या करती है, एक आदमी को टेंट करती है. जैसे नेचर है, सी है, सिटीज़ है. ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम, सुनो बेटा, अगर सर्वाइव करने के लिए एक्चुअली हम सिटीज़ की तरफ किस लिए मूव करते हैं? जस्ट टू अर्न, टू लीड अ लग्जूरियस एंड अ गुड लाइफ. तो यहाँ पर पॉइंट हमें ये बोल रहा है कि ये जो रैट ट्रैप है वो ये सोचता है, ये जो लोग सिटीज़ की तरफ मूव हो रहे हैं, वहाँ पे जाके अर्न कर रहे हैं, कह वो कुछ नहीं है. ये जो सिटीज़ की तरफ मूव हो रहे हैं, ये एक उन लोगों के लिए बेट है, चारा है. वो इस चारे की तरफ जाते हैं, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उसकी तरफ मूव होते हैं. एंड देन व्हाट हैपन, द पर्सन कॉट इन अ रैट ट्रैप. जैसे चूहा है, आप चूहे को पकड़ते हो, कैसे पकड़ते हो? रैट ट्रैप में या तो आप चपाती रखते हो, पनीर रखते हो, पोर्क रखते हो. किस लिए? वो जो रैट है उसको टेम्प्ट करने के लिए ना. टेम्प्ट क्या होता है? मतलब लालच देने के लिए ना, कि वो फटाफट आपके वो पनीर के टुकड़े को देखेगा, फटाफट रैट आएगा, उसको खाने की कोशिश करेगा, एंड देयर द रैट क्लोजेस इन अ ट्रैप. बस भाई, पकड़ा गया चूहा. इन द सेम वे ये जो रैट ट्रैप सेलर है, ये लोगों के लिए सोच रहा है. लोगों के लिए मतलब एक अम्यूजिंग थॉट है, मतलब लोगों के लिए वो एक तरह से बुरा सोच रहा है. और ये जो थॉट वो सोच रहा है, ये थॉट उसको बड़ी खुशी दे रहे हैं कि देखो, ये जो लोग हैं शहर में भाग रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में जा रहे हैं, लैंड सीज में अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है. ये तो उन लोगों के लिए चारा है. वो उस बेट है, उस बेट को जाएंगे, पकड़ेंगे, और वो अपने आप ही इस रैट ट्रैप में, इस जाल में फंस जाएंगे. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered किसके लिए कहा गया बेटा? रिचीज कहा गया ना यहाँ पे कि द लैंड्स, सीज, सिटीज एंड विलेजेस. कहा गया इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड clothing, exactly as a rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. The world had of course never been very kind to him. अब यहाँ पर राइटर हमें बता रहे हैं, ये जो रैट ट्रैप सेलर है का लोगों ने इसके प्रति सिंपैथी नहीं है. लोगों के मन में इसके प्रति सिंपैथी नहीं है, लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. इल मीन्स बुरा सोचना. यही रीज़न है कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है, ये जो वैगाबॉन्ड है, ये जो ट्रैम्प है, ये हमेशा लोगों के लिए बुरा सोचता है. अब नॉर्मल सी बात है, आप बेटा डेली लाइफ में एग्जांपल ले लीजिए. अगर कोई आपको बड़ी प्यार से, अफेक्शन से, आपको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है, तो ओबियस है यू थिंक गुड ऑफ अदर्स. बट अगर दूसरा पर्सन ही किसी को दुत्कारेगा, अरे हट, तुम्हें तो कोई मैनर नहीं है, सो मतलब आपके बारे में हमेशा बुरा सोचेगा. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पर्सन हु थिंक्स
इल ऑफ यू, क्या आप उसके बारे में अच्छा सोचोगे? एब्सोल्युटली नॉट। 98% लोग बोलेंगे कि नहीं। 2% ऐसे होते हैं चलो कोई नहीं छोड़ो यार, अगर उसका नेचर बुरा है वो उसके लिए, मैं तो उसके लिए अच्छा करूँ ना। बट सिस कहाँ पर 98 प्रपोर्शन है, कहाँ पर 2 प्रपोर्शन है? तो यही रीज़न है दिस वेगाबॉन्ड, दिस ट्रैम्प, रगाम्यूफिन, ये हमेशा लोगों के लिए जब बुरा सोचता है, ये इससे उसको खुशी मिलती है। इट बिकेम अ चेरिश्ड मतलब हैप्पी टाइम, pastime of his during many dreary ploddings. Underline the word students dreary. Dreary होता है dull, gloomy. Applauding means I have just told you the meaning of this, means walking laboriously. During many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. Snare होता है trap, जाल. इसलिए उन लोगों के बारे में घूमते फिरते अपने बैड टाइम में भी वो लोगों के लिए ऐसे विचार अपने मन में रखता है। कैसे विचार? कि वो लोग मतलब क्या करते हैं, एक रैट, यहाँ पर एक मेटाफर ही है कि मतलब रैट ट्रैप यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि एक रैट से, कि जो रैट जो है आप जब उसको पकड़ते हो चूहेदानी में, किसी फॉक या चपाती को लेने के लिए जाता है, उसमें बंद हो जाता है, वैसे ही कहा गया है The people who he knew had let themselves be caught in the dangerous snare. और उसी तरीके से ये लोग भी चूहे की तरह एक रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। And of others who were still circling around the bait. और बाकी ऐसे भी लोग हैं सर्कलिंग अराउंड द बेट, बेट मतलब चारा, ललचाना, उस लालच में फंसना। और ऐसे वैसे लोगों के बारे में भी सोचता है जो कि वो उस रैट ट्रैप के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। इसका मतलब उनके मन में भी वो लालच आएगा, वो बाकी लोगों की तरह उस बेट, उस लालच को मतलब पाने की कोशिश करेगा। एंड देन अगेन द पर्सन जस्ट caught in a rat trap. One dark evening as he was trudging होता चलना, along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside. Just he kept on walking. तो भी वो क्या देखता है, रोड साइड में कॉटेज है। And he knocked on the door to ask shelter for the night. अब भाई इसका खुद का कोई घर है नहीं, कोई फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, जस्ट एक वंडरर है, ये एक वेगाबॉन्ड है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। और जब शाम होती है तो ये सोचता मुझे कहीं ना कहीं शेल्टर मिल जाए। तो वैसे ही चलते चलते इसने कॉटेज में नॉक किया एंड ही वांटेड टू शेल्टर फॉर नाइट। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस व्हिच ऑर्डिनरी मेट हिम। अब इसमें कहा गया नॉर वाज ही रिफ्यूज, लेकिन यहाँ पे बाकी लोगों की तरह है, यहाँ कहीं भी ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि कहीं भी इसने जहाँ शेल्टर लेने की कोशिश की, लोगों ने इसको मतलब दुत्कार दिया। सौर फेसिस क्या होते हैं, मतलब नकारात्मक फेसिस, नेगेटिविटी, अरे हट कहाँ से आ गया ये भिखारी सा, अरे चल 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 आगे चल। तो इसने कहा गया कि यहाँ पे कि लोगों ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब उसने नॉक किया, सो he was he refused instead of the sour faces which ordinary met him. The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. लेकिन जब इस पर्सन ने गेट दरवाज़ा खोला, सो एक क्रॉफ्टर था, ही इज़ लिविंग अलोन हियर, इसकी कोई वाइफ नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, एंड जस्ट टॉक्स टू हिज लॉनलीनेस इमीजिएटली। अब टॉक्स टू हिज लॉनलीनेस मतलब ही वॉज लिविंग अलोन, अकेलापन, अपने आप में रहना। बट लेकिन जब उसने देखा दैट देयर इज अ स्ट्रेंजर, ही फील्स हैप्पी, ही वेलकम्स हिम, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। मतलब उसको अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए कम से कम कोई इंसान तो मिला उससे बात करने के लिए। इमीजिएटली ही पुट द पॉरिश पॉट ऑन द फायर। यही नहीं बेटा, उसने उसको वहाँ पे शेल्टर रहने के लिए मतलब उसने उसको रोका नहीं, जगह भी नहीं दी। लेकिन यहाँ पर देखो एक सरप्राइजिंग चीज़ है, उसके लिए एक बड़ी अमेजिंग इंसिडेंट है ये। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर क्रॉफ्टर होता है फार्मर, उस क्रॉफ्टर ने उसके लिए पॉरेज, उसके लिए दलिया बनाया। और यही नहीं, इवन ही हैड प्रोवाइडेड अ गुड टाइम टू दिस वेगाबॉन्ड। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Means एक तरह से उसको hospitality दिखा रहा है, किसके प्रति, रैट ट्रैप के प्रति। And gave him supper. Supper होता है रात का खाना।
Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. इसके बाद एक्चुअली यहाँ पर उसने टोबैको प्रोवाइड किया, स्मोकिंग प्रोवाइड की यहाँ पे उसने. Finally, he got out an old pack of cards and played Majolus with his guest until bedtime. अब मतलब उन्होंने पोरेज खाया, टबैको उसने स्मोक किया, और उसके बाद मेजोलिस का होता है अ गेम ऑफ कार्ड्स. उसके बाद उन्होंने कार्ड्स खेले, मतलब बेड टाइम तक, सोने से पहले. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरेज एंड टोबैको. कहा कि जिस हिसाब से इस क्रॉफ्टर ने उसका वेलकम किया, उसको पोरेज टोबैको प्रोवाइड किया, वैसे ही ये आदमी बड़ा जेनरस था, बड़ा ही काइंड और दयालु किस्म का था. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस. और यहाँ पे गेस्ट कौन है बेटा? ये क्रॉफ्टर है. और ये गेस्ट उसको बताता है, इन्फॉर्म करता है. वॉज इन्फॉर्म्ड किया जाता है उसको एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ, मतलब यहाँ पर ये जो क्रॉफ्टर ने उसको वेलकम किया ना, अब ये क्रॉफ्टर अपने बारे में किसको बता रहा है? इसको पेडलर को अपने बारे में बता रहा है. और क्या बता रहा है देखिए स्टूडेंट्स. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट had been a crofter at Ramjesso's Ironworks. वो बता रहा है, कहा कि उसकी प्रॉस्पेरिटी के डेज में his host मतलब crofter had been a crofter मतलब एक crofter ही है. crofter होता है who works at the fields, farmer at Ramjesso's Ironworks. crofter था Ramjesso's Ironworks के लैंड पे काम करता था. and had worked on the land now that he was no longer able to do day labor. कहने का मतलब है अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी लैंड पे एज अ फार्मर काम कर सके, बिकॉज ही हैज़ ग्रोन अप ओल्ड. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. और वो उसको बताता है पेडलर को, और एक्चुअली उसकी जीविका कैसे चल रही है, उसकी लाइवलीहुड कैसे चल रही है. एक गाय है उसके पास, और उस गाय की वजह से मतलब वो एक अच्छी लाइफ लीड कर रहा है. जस्ट दैट बॉसी यहाँ पे उसने गाय को कहा है, was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner. ये जो kroner जो है स्टूडेंट्स, स्वीडन करेंसी है, इन पेमेंट. अब वो उसको बताता है ये जो बॉसी है, ये जो गाय है, उसको इतना सफिशेंट दूध देती हैं क्रीमरी, जहाँ पर दूध को फैट पे बेचते हैं, कि लास्ट मंथ उसने इस गाय की वजह से उसके मिल्क जो क्रीम वो फैट पे देता है जाके डेयरी में, 30 kroner उसने अर्न किए हैं फ्रॉम दिस काउ. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडिबलस होता है अनबिलीवेबल. जब उसने बताया ना कि भाई मैं एक गाय से 30 kroner कमा लेता हूँ, ये जो पैडलर था तो मतलब उसको बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ. कहा मैं नहीं मान सकता कि मतलब ये एक गाय से 30 kroner कमा सकता है. For the old man got up and went to the window. अब देखो what इसने क्या गलती की, इस आदमी ने, इस ओल्ड मैन ने क्या गलती की. एक्चुअली इन ऑर्डर टू मेक हिम बिलीव, उसको विश्वास दिलाने के लिए वो उठता है, और उठ के वो क्या करता है, went to the window and took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. अब ये देखो बेटा, अब उसने क्या, विंडो फ्रेम में एक लेदर पाउच लटका रखा है, और उस लेदर पाउच में उसने अपने पैसे रखे हैं 30 kroner, जो उसने लास्ट मंथ अपनी गाय के दूध को सेल करके कमाए थे. व्हाट डू यू थिंक ये जो ओल्ड मैन कर रहा है, ये जो क्रॉफ्टर, व्हाट द एक्ट ही इज डूइंग हियर, क्या ये ठीक कर रहा है? इनफैक्ट है तो वो स्ट्रेंजर ही ना, वो उसको जानता ही कितना है कि ये पर्सन कैसा है, ट्रस्टेबल है या नहीं है. बट स्टिल यहाँ पर वो काइंड एक्ट इसलिए करता है बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन, वो अकेला था. अब उसका अकेलापन दूर हो गया, और अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका, और वो उसको सब कुछ अपने बारे में डिस्क्लोज करता है. took down a leather pouch with hung on a nail in the very window frame and took out 30 wrinkled होते हैं, जैसे होते हैं ना जो नोट जो होते हैं, मतलब मुसे हुए से, दबे हुए से, 10 kroner bills, 10 के 3 नोट थे. These he held up before the eyes of a guest
नॉडिंग नोइंगली, और उसने ये 10 के 30 क्रॉनर वो उसको अपने गेस्ट को दिखाता है, नोडिंग नोइंगली, एंड देन स्टफ दम बैक इनटू द पाउच, कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 30 क्रॉनर्स मैंने उस गाय से कमाए हैं। और उसने उन 30 क्रॉनर्स को फिर से पाउच में डाला और उस पाउच को कहाँ लटका दिया, विंडो पे लटका दिया। The next day, both men got up in good season. They both just got up. And after that, the crofter was in a hurry to milk his cow. और भाई सुबह सुबह उसको तो काम है, वो उठा फटाफट अपनी गाय के पास जाएगा, उसको दूध निकालेगा. And the old other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had got up. अरे जब घर का हेड उठ गया है, अरे मैं तो यहाँ पे गेस्ट हूँ ना, अगर वो उठ गया तो मुझे भी उठना चाहिए. I must also just get up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. And now both left the house. Crofter just he moved on his way to work, और peddler अपने रास्ते चल देता. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. ये आप देखो क्या हुआ. अब उसकी विंडो पे यहाँ पे क्या बता रखा था बेटा, कहा है ना बेट वर्ड मैंने यूज़ किया, चारा. तो इस क्रॉफ्टर ने जो उसके लेदर पाउच में जो 30 क्रॉनर है ना, वो चारा था, बेट था. किसके लिए, मतलब जो भी आते जाते देखेगा उसके मन में लालच आएगा, वो उसको चोरी करेगा और वो जाल में फंस जाएगा. उसी तरीके से अब ये देखो जो पैडलर है, ही ऑलवेज जस्ट थिंक्स अबाउट द इल, जस्ट ही अम्यूज्ड अबाउट द पर्सन, ही थिंक्स दैट दीज पीपल दे आर सराउंडेड बाय द रिचेस, बाय द बेट. और वो टाइम आता है कि जब ये लोग एक ट्रैप में, एक स्नेयर जाल में फंस जाते हैं. ये क्या कर रहा है, ये भी तो ऐसे ही एक्ट कर रहा है ना. अब ना व्हाट हैपन, he came back after half an hour. The rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in. However, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. And now what happened? He came back. स्टूडेंट्स, आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम ये तो जो क्रॉफ्टर है, क्रॉफ्टर ने तो उसको वेलकम किया, उसको खाना प्रोवाइड किया, ही प्लेड विद हिम, ही प्रोवाइड गुड टाइम, उसने काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी उसको प्रोवाइड की, फिर उसने ऐसा क्यों किया? ऑब्वियस है, क्वेश्चन आ रहा है ना आपके मन में. यही तो है बेटा यहाँ पे बेट, चारा, क्योंकि इसमें बताया गया है वो सिर्फ बैग ही नहीं करता था, थोड़ी बहुत चोरी भी करता था. और चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए. तो उसने उसकी गुडनेस को ना देख के जस्ट उसको तो अपनी लाइफ लीड करनी थी, उसको तो पैसा चाहिए था. आफ्टर हाफ एन आवर ही केम बैक, ही स्मैश द विंडो. वो लेदर पाउच निकालता है, लेदर पाउच से 30 क्रॉनर निकाल के रिंकल्ड क्रॉनर्स अपने पॉकेट में डालता है, एंड देन वहाँ से चल देता है और लेदर पाउच को बैक विंडो पे वहीं लटका देता है. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smart. बड़ा खुश है ये, देखा मैंने अपनी स्मार्टनेस की वजह से उसको बेवकूफ़ बना दिया और उसके पैसे चोरी कर लिए. He realized, of course, that at first he dared not continue the public highway, but must turn off the road into the woods. अब what a thing, अब वो मतलब अगर चोरी किए तो वो अगला सोचेगा ना कि मैं पकड़ा ना जाऊँ. अब उस हाईवे से ना जाकर ही डाइवर्टेड हिज वे, और उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया. और उसने क्या सोचा, अगर भाई मैं हाईवे से जाऊंगा तो भाई जब लोग वो बताएगा कि ऐसे ऐसे है, एक शैगी पर्सन है, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, डैंगलिंग गले में रैट्स ट्रैप लटका रखे हैं, तो भाई मैं पकड़ा जाऊंगा. सो नाउ ही चेंज हिज वे because he already had 30 stolen kroners with him. During the first, he realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway.
but must turn off the road into the woods. और into the woods मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट था, जंगल था, उस तरफ चल दिए. During the first hours, this caused him no difficulty. वो चलता रहा. First hours, पहले घंटे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई डिफिकल्टी नहीं है चलने में. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. अब क्या था? He kept on roaming here and there, और वो जंगल में फंस गया और वहाँ से उसको कोई भी निकलने का रास्ता नहीं मिला. आपको क्या लगता है? इधर से रैट ट्रैप में फंस गया ना, जाल में फंस गया. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. उसे लगा मैं इसी रास्ते से चलता जाता हूँ, हो सकता कोई रास्ता यहाँ से निकल जाए. वो घूमता रहा और बाद में उसने रियलाइज़ किया कि भाई मैं जहाँ से चला हूँ अब तो मैं वापस वहीं पे आ गया हूँ. जैसे कहा अगर आप सीपी जाओगे तो सीपी अगर सपोज आप फर्स्ट टाइम जाते हो या सेकंड टाइम जाते हो, कहते हैं वहाँ पे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि कोई भी अगर आप वहाँ कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो कहीं जाना है तो अगर वो ये गोल चक्कर है कि जहाँ से आप चले आप वहीं पे आ जाओ. तो वैसे ही ये जो पैडलर है कहाँ तो नहीं पकड़ने के लिए कि मैं पकड़ा ना चाहूँ, फॉरेस्ट का रास्ता लिया और वो उसी में ही मतलब भटकता रहा. और उससे बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं जहाँ से चलना शुरू किया था मैं तो वहीं पर ही हूँ. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अब उसके मन में आया वो क्या सोचता था. That the whole what do you think about the world and the rat trap. कहा ना ये वर्ल्ड क्या है, कहा ये एक मतलब एक बेट प्रोवाइड करता है किसके लिए, मतलब रिचेस जॉय प्रोवाइड करता है किन लोगों के लिए जो कि इस बेट को लेने की कोशिश करेंगे और वो इस जाल में फंस जाएंगे. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. वो तो खुद ही फंस गया. उसने लेदर पाउच देखा, लेदर पाउच में 30 करोड़ बेट था. उसने उस बेट को पकड़ने की कोशिश की और अब वो फंस गया जाल में फंस गया मतलब ही लॉस्ट हिज वे. He had left himself be fooled by a bait and had been caught. कहा अरे मैं तो इस चारे ने तो मेरे को बेवकूफ़ बना दिया और मैं खुद ही जाल में फंस गया. The whole forest with its trunks, branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. So what he thinks? क्या सोच रहे हैं? वो फॉरेस्ट में है. See the word impenetrable means that can't be penetrated, मतलब अभेद्य, भेदा ना जा सके, बाहर ना निकला जा सके. और उसे ये लगा कि भाई इतना डेंस फॉरेस्ट है, ये ब्रांचेस है, लॉक्स मतलब लकड़ी के गट्ठे हैं और ये यहाँ पर इतनी फॉलन लॉक्स यहाँ पे हैं, ब्रांचेस है, ट्री स्ट्रंक्स है, इनके बीच तो मैं फंस गया. मैं तो एक रैट ट्रैप जैसे रैट ट्रैप एक चूहा फंसता है, मैं तो इस फॉरेस्ट में फंस गया. सो हाउ वुड आई जस्ट गेट अवे फ्रॉम इट. का अब यहाँ से तो बचना बड़ा ही मुश्किल है. इट वॉज लेट इन डिसम्बर. डार्कनेस एंड इट वॉज लेट इन डिसम्बर मीन्स इट वॉज द टाइम ऑफ विंटर्स. दिसंबर का टाइम था, ठंड का टाइम था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. मतलब सब कहीं अंधेरा ही अंधेरा था और फॉरेस्ट है तो ऑब्वियस है वहाँ ज़्यादा डार्कनेस है क्योंकि कहा ना कि सन रेज या जो मून की जो रेज होती हैं वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो फॉरेस्ट जो एरिया होता है वो उधर ज़्यादा अंधेरा होता है. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. ग्लूम मीन्स ही बिकम सैड, बहुत परेशान हो गया, डिस्पेयर हो गया. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एंड टायर्ड टू डेथ. इतना ज़्यादा थक गया कि वो घूम घूम के इतना थक चुका था कि वो मतलब धरती पे बैठ गया, ग्राउंड पे बैठ गया, टायर्ड टू डेथ. और उससे लगा मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि अब तो मैं मर ही जाऊँगा. थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, बट जस्ट as he laid his head on the ground he heard a sound, a hard regular thumping. जैसे ही when he was about to sink on the ground, thumping जब किसी चीज़ को तोड़ने की फोड़ने की आवाज़ आई और उस आवाज़ से थोड़ा वो मोटिवेट हुआ. There was no doubt as to what that he was. He raised himself, वो उसकी आवाज़ को सुन के बैठा हुआ.
उसको कोई शक ही नहीं था कि किस चीज़ की आवाज़ हुई। वो पहचान गया कि मतलब कुछ ना कहीं कुछ लोहे का काम चल रहा है। और वो इस आवाज़ को सुन के दानी कॉट अप। दोज आर द हैमर स्ट्रॉक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। मतलब हथौड़े से कोई जोर जोर से कोई तीर तोड़ी जा रही है, और ये क्या थी? आयरन मिल थी। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। अरे हाँ, लगता है आसपास लोग हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ मतलब अपनी पूरी हिम्मत जुटाना। कट अप एंड स्टैगर्ड, हटखड़ा के चलना, क्योंकि अब उसमें तो इतनी हिम्मत थी नहीं, सो दैट ही कुड वॉक प्रॉपरली। ही वॉज स्टैगरिंग, लड़खड़ा के चल रहा है वो। कहते ना, ही वॉज अबाउट, यहाँ पे मैंने जस्ट अभी बताया ना, जस्ट ही वॉज अबाउट टू टायर टू डेथ एंड ही थॉट दैट द लास्ट मोमेंट हैड कम। लेकिन फिर भी वो उस आवाज़ को सुन के थोड़ा मोटिवेट होता है एंड ही स्टार्टेड मूविंग टू दैट साउंड। The Ramsessos iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. कहा गया ये जो रामजेसो आयरन वीक है, अब यहाँ पर काम नहीं होता। इस टाइम जो रामजेसो आयरन व्हील है वो मतलब इस टाइम मतलब अब वो बंद हो चुकी है। जब राइटर ने जब स्टोरी लिखी थी वहाँ पर एक आयरन मिल थी, बट नाउ क्लोज डाउन। अब वहाँ पर ये आयरन मिल नहीं है। नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको बंद हुए। अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टिंग, रोलिंग मीज एंड फोर्ज। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लॉर्ड बार्जेस एंड स्काउस, ये यहाँ पे जो वर्ड दिया ना बेटा, बार्जेस का मतलब होता है अ काइंड ऑफ अ स्पेड, फावड़ा, एंड स्काउस slide down the canal which led to a large inlet lake. And in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. अब यहाँ पे बता रखा है कि जो समर टाइम होता है वहाँ पर जो बड़े बड़े जो ये स्पेड्स वगैरह हैं, जो स्काउस है, और स्काउस होता है फ्लैट बॉटम बोर्ड, just which are used to slide down the materials, और वो साथ के साथ किसके साथ ऐड होती है? अ लार्ज इंडेड देयर इज़ अ लेक ऑल्सो। और विंटर टाइम्स में द रोड्स नियर, और जो रोड के आसपास जो मिल होती है, एक्चुअली दे वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल, क्योंकि वहाँ पर जो कोल वगैरह का काम चल रहा होता है, मतलब स्मेल्टिंग और स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स, फोर्ज है, तो जिसकी वजह से विंटर्स के टाइम पे क्या होता है बेटा, यहाँ पर पूरा का पूरा द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल। और इस कोल की वजह से मतलब एक होता है ना कि जहाँ पे कहीं ये काम चल रहा होता है तो वहीं स्मोक बहुत ज़्यादा निकलती है। और जो विंटर्स के टाइम में समर्स में क्या होता है, वो एवपोरेट हो जाती है, मतलब उनमें कंडेंसेशन कम होता है। लेकिन बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स ये पूरी जो ब्लैकनेस है जो कोल से आती है वहाँ पे कंडेंस्ड हो जाती है, और पूरा एरिया जो है वहाँ का मिलवर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल से सारा का सारा काला हो जाता है। डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और ये क्रेट्स क्या होता है? क्रेट्स होता है वुडन बॉक्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. अब वो घूमते घूमते एक्चुअली आवाज़ सुनते सुनते वेयर हैज़ ही रीच्ड नाउ, कहाँ पर पहुँचा है? जस्ट ही रीच्ड एट द फोर्ज, जहाँ पे आयरन वर्क का काम चल रहा था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर द क्रिसमस द मास्टर स्मिथ, मतलब मास्टर स्मिथ और उसका जो हेल्पर है, दे वर सिटिंग, बैठे हैं फर्नेस के पास, वेटिंग फॉर द पिक आयरन। पिक आयरन मतलब रॉ आयरन, ये यहाँ पर काम चल रहा है। और वो जैसे जाता हो एंटर करता हो देखता है कि वहाँ पे ब्लैक स्मिथ बैठा है, उसका हेल्पर बैठा है, एंड दे वर वेटिंग फॉर द रॉ आयरन टू कम विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल क्या होता है? एक बड़ा, एक्चुअली एक बड़ा स्टूडेंट्स, इट इज़ एन आयरन ब्लॉक ऑन विच मेटल इज हैमर्ड और शेप्ड। मतलब एक बड़ा गट्ठा होता है लोहे का जहाँ पर जो बड़े बड़े पिक आयरन जो होते हैं वो रखे जाते हैं और उस पर रख करके उनको तोड़ा जाता है। तो कहा गया है यहाँ पर
विच हैड बीन पुट इन द फायर, यहाँ पर जो लोहा है इस आग में रखा जाता है, रेडी टू पुट एन एनवेल एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ them got up to steer the glowing mass with a long iron bar returning in a few moments। मतलब एक एक करके वो एनविल पे वो मतलब आयरन्स की जो आयरन जो रखा हुआ है, जो पिक आयरन है उसको एक एक करके जैसे ही उसको तोड़ रहे हैं या उसको मतलब पुट ऑन द एनविल पे रखा हुआ है, एवरी नाउ एंड देन धीरे धीरे करके एक एक वन ऑफ them got up to steer the glowing mass with a long iron bar returning in a few minutes। मतलब वहाँ पर वो काम चल रहा है, उसको फर्नेस पे वो आयरन रखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, खड़े होके एक एक करके उस एनविल के ऊपर उस जो वो एक्चुअली स्टेयर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मिनट्स, और मतलब ऐसे एक एक करके वो उसको मतलब रोटेट कर रहे हैं उसको। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन मतलब और उनको बुरी तरीके से पसीना आ रहा है। दो as was a custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। as a custom means they have to do the iron work। यहाँ पे फर्नेस भी है, फोर्स भी है, इस फोर्स में जो फर्नेस है और यहाँ पर क्या जो स्मेल्टिंग का जो आयरन वर्क का काम चल रहा है कि यहाँ पर जो है स्पार्क भी होता है जब ये आयरन का जो काम करते हैं। तो ना इन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, लॉन्ग शर्ट पहन रखी है एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। कहा गया है जहाँ लोहे का काम चल रहा है, he heard the different sounds as the work was going on। the big bellows groan and burning coal cracked। अब देखो बेटा blows, underline the word blow। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a device used for blowing in air। जैसे अंगीठी चल रही है या कुछ भी फर्नेस चल रहा है उसमें ब्लोज यूज़ किए जाते हैं उसको एयर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो फायर है ना जो जल रही है मतलब वो बंद ना, एक्सटिंग्विश ना। सो बिग ब्लोज ग्रॉन कर रहे हैं एंड द बर्निंग कॉल क्रैक। बर्निंग कॉल क्रैक मतलब जब वो कोल बर्न होते हैं जो चिट की जो आवाज़ आ रही है, कहा है वहाँ पर इसकी आवाज़ आ रही है। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। अब यहाँ पर कहा गया है शॉवल्ड होता है एक आयरन का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पेड, राइट। वो स्पेड को उठा के चारकोल इनटू द, उस चारकोल को स्पेड शॉवल से उठा के इनटू द मॉ होता है स्टमक ऑफ द फर्नेस। मतलब वो एक अंगीठी जल रही है या ये लगा लो वहाँ पे आग जल रही है, उस आग को कंटिन्यू करने के लिए वो जो आग जल रही है तो उसको यहाँ पे मॉ कहा गया स्टमक। और जैसे ही वो स्पेड से उठा के कोल उस मॉ के मतलब उस मुंह के अंदर जा रहा है ताकि वो जो आग जो जल रही है ना फर्नेस पे वो आग ना बुझे। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर होता है साउंड आना। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, इन चीज़ों की ही आवाज़ नहीं। तो यहाँ पर एड ये बता रहा है कि जब रैट ट्रैप वहाँ एंटर करता है ही हर्ड डिफरेंट साउंड्स, और कौन कौन से साउंड हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आउटसाइड रोड, और यही नहीं फोर्स के बाहर, रोड होता है गूंजना, आवाज़ आना, गूंजने की। रोड द वाटरफॉल एंड द शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल फ्लोर। वाटरफॉल है उसकी आवाज़ आ रही है। अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप, हवा चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। और द रेन अगेंस्ट, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश है। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल फ्लोर, तो जैसी हवा चल रही है वो जो पानी है उस पानी को हवा बड़े जोरों से मतलब उसकी तरफ टाइल्स की तरफ धकेल रही है और इसकी भी आवाज़ वहाँ पर सुनाई दी जा रही है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the fort। अब यहाँ पर it was probably on account of all this noise, अलग अलग तरह की नॉइज़ है। बिकॉज ऑफ दिस नॉइज़ ब्लैकस्मिथ ने मतलब ब्लैकस्मिथ क्या जो काम कर रहा है ना लोहे का उसको कहा गया है इवन ही डिड नॉट नोटिस दैट मैन हैड ओपन द गेट, किसी ने वहाँ पे दरवाज़ा खोला है, किसी ने एंड एंटर द फोर्ज, कोई उस मिल के अंदर आया है।
until he stood close up to the furnace, जब तक कि वो उस फर्नेस जहाँ वो मतलब बैठे थे और जहाँ पर कहा गया ना वो काम चल रहा था, मतलब वैसे तो वेट कर रहे थे मतलब पिग आयरन आने का, लेकिन जब तक वो फर्नेस के पास नहीं पहुंच गया तब तक उन लोगों ने उसको देखा नहीं. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light. कह रहे ऐसे वैगाबॉन्ड के साथ, ऐसे ट्रम्प, ऐसे वंडरर के लिए इससे अच्छी जगह कहीं कोई नहीं होगी. और ये कोई इट वॉज नॉट अनयूजल, कहीं कोई नई बात नहीं है कि ऐसे जो ट्रम्प है या ऐसे जो वैगाबॉन्ड है, इन लोगों ये लोग मतलब यहाँ पर आए कुछ कुछ खास बात है. ये लोग कहीं भी चले जाते तो करिए, तो ये तो साधारण बात है कि ऐसे लोग इस जगह ऐसी जगह की तलाश करते हैं वहाँ पे अपना शेल्टर, अपनी रात बिताने के लिए. Without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. Sooty panes होता है black panes, and to come to warm themselves in front of the fire. अब सुनो बेटा, नाउ ही एंटर द फोर्ज. ये जो पेडलर है ये फोर्ज में चला गया है आयरन मिल के अंदर. बाय द ग्लो ऑफ लाइट, लाइट चल रही है वहाँ पे, विंटर्स का टाइम है, थोड़ी वार्मथ है वहाँ पे. एंड ग्लो ऑफ लाइट के मतलब यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जैसे जो विंटर्स होते हैं उस टाइम में पूरी जो कोल ब्लैकनेस से कवर हो जाता है, तो वैसे ही कहा गया है लाइट ऑफ ग्लो विच एस्केप, मतलब वहाँ पर जो पूरा ब्लैकिश है, वो सूदी होता है ब्लैक पेंट, जो स्मोक वगैरह से वो जो कवर्ड है वो पेंट्स, वो वहाँ से जो लाइट पास हो रही है, और ये लाइट देख के लोग वहाँ पे मतलब लाइट देख के आवाज़ आ रही है, सूदिंग पेन, जब वो देख रहे ओहो फर्नेस है वहाँ से लाइट आ रही है, तो ऐसे लोग वहाँ पे चले जाते हैं. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. इसका मतलब ये है जो ब्लैकस्मिथ वहाँ बैठा है ना, उसने उसको कोई भाव ही नहीं दिया, कोई अटेंशन ही नहीं दी. उसको पता था भाई ऐसे लोग तो घूमते रहते हैं, इनका क्या काम है, तो उसने यहाँ पे जो ब्लैकस्मिथ ने इस पैडलर को इग्नोर किया. He looked at the way people of his type usually did. क्या मतलब he looked the way people of this type. अरे छोड़ना, ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं, क्या ध्यान देना इन पे. With a long beard, बता रखा उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, किसकी, पैडलर की. डर्टी, गंदा भत्ता सा था. रैट, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे. एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, मतलब गले से लेके एक मतलब एक रस्सी में उसको जो रैट ट्रैप्स बांध रखे थे जो कि उसकी चेस्ट तक आ रहे थे. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने जब बोला परमिशन ली, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ, रुक सकता हूँ, जो वहाँ ब्लैकस्मिथ बैठा था उससे पूछता है. लेकिन मास्टर हॉटेड मतलब सर हिलाना, किस वे में सर हिलाया उसने, हॉटेड होता प्राउडली, अरे छोड़ ठीक है, ऐसे सर पटकना. कंसर्ट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल, और उसने उसको कुछ भाव नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, ठीक है जैसे हम बोलते हैं ना, अरे हाँ ठीक है, इग्नोर करके, तो वैसे उसने मतलब बिहेव किया. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, उसने भी उसको कुछ नहीं कहा, उसको तो बस रात बितानी थी वहाँ उसको अपना बस टाइम शेल्टर चाहिए था. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वो यहाँ पे उससे किसी से बात करने नहीं आया था. Already he got too much of tired, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, और वहाँ पे थोड़ा warm himself और सोने के लिए आया था. In those days, the Ramchesos iron mill was owned by a very prominent iron master. ये जो रामचेसो आयरन मिल थी, ये किसकी मिल थी? It was owned by the prominent of the famous iron master. उसकी थी. Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया बेटा, what was the aim of the iron master? जो रामचेसो आयरन मिल का जो मास्टर था उसका एक्चुअली क्या एम था? एक्चुअली उसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन था टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, के मार्केट में अच्छा सा मतलब सबसे अच्छा लोहा मेरा जाए. क्योंकि जब कॉम्पिटिशन होता है मार्केट में तो सब लोग ये चाहते हैं ना भाई मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा, तो यही एम्बिशन आयरन मास्टर की थी. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on the one of his nightly rounds of inspection. मतलब वो निगाह नजरानी रखता है, चाहे वो रात हो या दिन में हो, कभी भी किसी भी टाइम
मतलब इंस्पेक्शन पे आ जाता है कि भाई काम कैसा चल रहा है, वर्कर्स काम कैसा कर रहे हैं, क्या मतलब अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो मेरी भी हाजिरी में कोई काम ढंग से तो लोग नहीं कर रहे हैं कि भाई चीज़ जो उन्होंने जो भी बनाया है, सामान जो भी जा रहा है कि अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी का जा रहा है ना. Naturally, the first thing, and he was okay. And at this very moment, he came into the forge on one of his 90 rounds of inspection. और आज जब ये वैगाबाउंड वहाँ पे उसने शरण लिया, वहाँ पे रुका है, तो आज इस रात ये जो आयरन मास्टर है, अगेन ही इज ऑन द इंस्पेक्शन. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way too close to the furnace that steam rose from his wet body. तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले उसने किसको नोटिस किया? इस पैडलर को नोटिस किया. रैगाम्यूफिन कहा गया. रैगाम्यूफिन होता है फेलो, अ स्टैगर्ड फेलो, पुअर फेलो. उसने उसको नोटिस किया. जबकि ब्लैक स्मिथ ने क्या किया? ब्लैक स्मिथ ने तो उसको इग्नोर कर दिया. अरे छोड़ना, ऐसे तो घूमते रहते हैं भिखारी से. वेल ईज हिज वे टू क्रॉस टू द फर्नेस, जो कि फर्नेस के पास आराम से लेटा हुआ था. स्टीम रोज उसके कपड़े से भाप निकल रहा था. वेट रैक्स, क्योंकि घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक गया था, टायर्ड होता उसकी बॉडी पूरी, पर पसीने आ रखे थे. सो अब वो रैक्स उसके मतलब वहाँ से पसीने निकल, मतलब स्टीम निकल रहा है उसके रैक से. द आयरन मास्टर डू नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. इट मीन्स दैट ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दी, बट लेकिन ब्लैक जो ये आयरन मास्टर है, इसने वो उसके पास गया. उसने ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि ब्लैक स्मिथ उसको इग्नोर किया, लेकिन आयरन मास्टर ने उसको इग्नोर नहीं किया. Who had hardly do not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. Deigned मतलब होता bothered. He bothered about the stranger. He walked close up to him. उसके पास जाता है. Looked him very carefully, बड़े ध्यान से देखता है. Then tore off his slouch hat to get a better view of his face. Actually वो ऐसे ना अपने मुंह के ऊपर हैट रख के सोया था. उसकी हैट हटाता है. कौन? आयरन मास्टर. Get a better view of his face. उसको बड़े ध्यान से देखता है. तो आप इसका क्या कैरेक्टर स्केच निकाल सकते हो आयरन मास्टर का? दैट ही इज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस पैडलर. बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलॉफ, ही सेड. हाउ यू डू लुक. उसको देखा, अरे उसको देख के हैरान हो गया, और वो इस तरह से हैरान हुआ जैसे उसका कोई पुराना कोई रिश्तेदार है. और वाकई में उसके साथ ऐसे हुआ. वो जैसे उसको देख देखता, नील्स ओलॉफ तुम, हाउ यू डू लुक, अरे तुम कैसे दिख रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramjesso and did not even know what his name was. लेकिन ये जो पैडलर है, जो रैट ट्रैप है, इसने तो आयरन मास्टर को कभी देखा ही नहीं था. What his name, और उसका नाम क्या था, उसको वो तो उसको जानता ही नहीं था. कौन? पैडलर उसको नहीं जानता था, लेकिन आयरन मास्टर ने कहा कि वो उसको जानता है और उसको नील्स ओलॉफ नाम से जानता है. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. अब देखो बेटा, कोई भी हो, अब उसने सोचा, पैडलर के मन में लालच आ गया. उसको ऐसा लगा, अगर ये फाइन जेंटलमैन बोल रहा है ना, सोच रहा है कि मैं इसका पुराना रिश्तेदार हूँ, तो शायद ये मुझे कुछ कपल ऑफ क्रॉनर्स, कुछ रुपए दे देगा मुझे. इसलिए मुझे इसको धोखा नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. तो उसे कहा कि हाँ, gone downhill, अंडरलाइन करो इडियम, इसका मतलब बैड टाइम. तो हाँ, समय ने मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत मिसफॉर्चून हुआ है मेरे साथ. You should not have resigned from the regiment. और अब बोलता है आयरन मास्टर. तो रेजिमेंट क्या होता है? एक टुकड़ी होती है ना, जैसे मिलिट्री, नेवी, नेवी में. तो कहा तुमको ना रेजिमेंट से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था, इसका रिजाइन नहीं देना चाहिए था. इसका मतलब क्या कि वो इसको यहाँ पर जो आयरन मास्टर है उसको यहाँ पे मिसजज करता है. और क्या मिसजज करता है? उसको लगता है इसका ही इज वन ऑफ हिज कॉमरेड्स होता है कंपेनियन, कि जिस रेजिमेंट में वो आयरन मास्टर था, ये उसी प्लेटून में, उसी रेजिमेंट में मतलब
एक ऑफिसर था. Said the Iron Master, that was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. का अगर उस टाइम मैं भी वहाँ होता ना, ये आयरन मास्टर बोलता है, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देता. Well, now of course you will come home with me. यानी चलो चलो अब तो मेरे साथ चलो. To go along after the manor house. अब वो क्या बोल रहा है? उसके साथ जाना. Underline the word manor. Manor होता है farm house. उसके साथ जाना, उसके घर में जाना. And be received by the honor like an old regimental comrade. Comrade क्या होता है? Colleague, साथी. That however did not please the tramp. और ये वो भी उस पर्सन के साथ जाना जो कि वो ये बोल रहा है कि भाई तुम मेरे पुराने कॉमरेड्स हो. उसके घर में जाना. And received by the honor. और इस तरीके से जाना कि जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है. तो ये चीज़ ट्रैम्प को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. गो थ्रू these pages and do one, students. See, here are 6 questions, and after reading these pages, I want you to just copy down these questions and write down the answer of these questions in your fair notebooks. This is for today. The remaining extra questions and the remaining pages I will explain tomorrow. Thank you very much, students, and have a nice day.